આપણે સૌ સાથે મળીને કરીશું ને સાહેબ, તો સાચા અર્થમાં બહુ ટૂંક સમયમાં આપણને ગામડે ગામડે કેન્દ્ર મળી જશે. એટલે આપ સૌને મારી વિનંતી કે ક્ષત્રિય એકતા યાત્રા જે ચાલે છે એને સફળ બનાવો. અને સાહેબ આપ સૌને મારી વિનંતી કે ક્ષત્રિય એકતા સ્વાભિમાન મહાસંમેલન અને મહારેલીનું જે આયોજન થયું છે એને તમે સફળ બનાવતા રહેજો. આવનારા સમયમાં પણ સફળ બનાવજો અને સમાજને તમે કામ આવજો. અને સાહેબ રજવાડા પાછા નહીં આવતો છીનવી લઈશું સાહેબ. અપક્ષમાં પણ લડવા તૈયાર છીએ અમે તો સાહેબ. અપક્ષમાં લડાવી દઈશું પણ જીતાડશે કોણ? બસ આ જોશ રાખીજો. અને 2022 ની વિધાનસભામાં ભુજમાં એવી 4 સીટો છે. ભુજમાં એવી 4 કચ્છ જિલ્લામાં એવી 4 સીટો છે સાહેબ જ્યાં ક્ષત્રિય સમાજનું પ્રભુત્વ છે. એ 4 સીટો પર અમને ટિકિટ જોઈએ. અબડાસા ગરાસદાર સમાજનું પ્રભુત્વ છે, માંડવી ગરાસદાર સમાજનું પ્રભુત્વ છે અને રાપરમાં કરડિયા સમાજનું પ્રભુત્વ છે અને ભુજમાં કચ્છી રાજપૂત સમાજનું પ્રભુત્વ છે. ટિકિટ જોઈએ. ભુજમાં કચ્છી રાજપૂત સમાજને એક ટિકિટ અપાવવાની હું બાંયધરી આપું છું સાહેબ. તૈયારી કરી લો તમે અને જીતાડવાનું કામ તમારે કરવાનું છે. ક્ષત્રિય એકતા આ મંચની હું આપને કહીને જઉં છું કે 4 સીટો આપણે લઈશું. જ્યાં ગરાસદારનું પ્રભુત્વ છે ત્યાં ગરાસદારને આપણે ટિકિટ અપાવીશું. જ્યાં કાઢેલું છે ત્યાં કાઢેલું અપાવીશું. જ્યાં કાઢેલું અપાવીશું. જ્યાં કચ્છી રાજપૂત ત્યાં કચ્છી રાજપૂત અપાવીશું. પરંતુ આ વખતે આપણે રજવાડા પાછા લઈશું. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए. આપણે બહુ સરસ મજાની વાતો સાંભળી અને એમના વક્તવ્યને જો બહુ નાનકડી વસ્તુમાં કહીએ આપણે કે શેખાવત સાહેબ કીધું કે અમે રજવાડા જોઈએ છે. આપણે કોઈની પાસેથી માંગતા નથી, આપણા હતા એટલે આપણે લેવાના છે અને આપણે લઈને રહીશું. અને એ જ વસ્તુને એક વાત કહીશ, દ્વંદ કહા તક પાલા જાય, યુદ્ધ કહા તક टाला जाए. द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध टाला जाए. तू भी है राणा का वंशज, वेग जहां तक भाला जाए. दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए. શેખાવત સાહેબ એક વાત કરી છે, બીજી પાર્ટીઓ ટિકિટ આપે ફાયદો એમનો છે અને જો નહીં આપે તો અમારી અપક્ષની તૈયારી છે. એટલે સિક્કો તો અમે ઉછાળીએ છીએ પણ ભારત 2 બાજુ છે. બરાબર. તો આપણે ઈ જ નેમ સાથે અને હું અમારા કચ્છની કરણી સેનાની ટીમ વતી બાપુ આપણે બાહેંધરી આપું છું કે જે સંગઠનની દરકાર આપણા સમાજને છે, એ અમારા ભાઈઓનું ગ્રુપનું એક બાહેંધરી છે કે શીઘ્ર નાનામાં નાના ગામ સુધી આપણી કરણી સેના હશે અને એના સભ્યો પણ હશે અને નામ, નંબર, મોબાઈલ સહિત હશે. અને એના માટે આપ સૌ ભાઈઓને હું હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, કુટુંબ એપમાં આપણે રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાના ગ્રુપમાં, રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના કચ્છના ફેસબુક ઉપર, રાષ્ટ્રીય કરણી સેનાના ઇન્સ્ટાગ્રામની આઈડી ઉપર હું સતત એક માત્ર 15 પ્રશ્નનો એક સર્વે, એક ફોર્મ તમારી પાસે મૂકું છું, જેમાં ઘણા બધા લોકોએ ફોર્મ ભર્યો છે. આપ સૌ લોકોને મારી હાથ જોડીને વિનંતી છે, માત્ર 2 થી 3 મિનિટ લાગશે. આપ એ ફોર્મ ભરી નાખો. અમારો કરણી સૈનિક આપના ગામમાં આપની વચ્ચે હશે અને આપણે સમાજને જ્યારે જરૂર હશે એ
ફોર્મની અંદર એટલી માહિતી રાખી છે કે જો મારા કોઈ સમાજને ભાઈને જરૂર પડશે કે ભુજની અંદર જૂની રાવલવાડી, તો જૂની રાવલવાડીના હું 10 નામ પરિવારના નંબર સાથે કાઢીને આપીશ. કોક એમ કહેશે કે રાપુર તાલુકાના આ ગામના વ્યક્તિ જોઈએ 10, તો ઈ આપણી પાસે મળશે. એટલે મહેરબાની કરીને ઈ ફોર્મ ખાસ ભરજો. દિવસ 2 ની અંદર ઈ એપ ની અંદર છલકાવી જવું જોઈએ, જે 2-3 હજાર ફોર્મ ભરાય તો. અને આજે ફરી હું રાત્રે 110% मोगल मात के चरणों में नमन करता हूं, करनी मात के चरणों में, और नमन करता हूं जितने भी मेरे से बड़े यहाँ विराजमान हैं उनके चरणों में. हम सफर हूं और साथियों को जय मां भवानी, जय राजपूताना. मेरे देश के नौजवान साथियों, आज मुझे यहाँ भुज में, गुजरात के भुज में आप सुन रहे हो, कच्छ जिले में, और आज भुज के पूरे शहर के अंदर, पूरी सिटी के अंदर नारे लग रहे थे कि पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, कि पत्थर को भी कर दे पानी. ये रेला नहीं, ये रैली नहीं, रेला है, राजपूतों का मेला है. पूरे भुज के अंदर केसर मैया, केसरिया साफा, केसरिया झंडा और नारे जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय मां मोगल, जय मां करनी, एरों की ना गेरों की, करनी सेना शेरों की. ऐसे सैकड़ों नारे आप लोग लगा रहे थे और धूमधाम से पूरे शहर के अंदर ये रैली आप लोगों ने शांति प्रिय ढंग से की. और एक भी, किसी भी दुकानदार की, किसी भी रेडी वाले की एक मूंगफली तक नहीं हिली. ये है असली क्षत्रिय, तो ये है असली राजपूत. मेरे देश के नौजवान साथियों, क्षत्रियों को खत्म करने के लिए, क्षत्रियों को दबाने के लिए, क्षत्रियों को कमजोर करने के लिए सरकारों ने समय समय पर अपने अपने हथकंडे अपनाए और अपने अपने हिसाब से कानून बना करके क्षत्रियों के ऊपर थोपने का काम किया. और मैं आप लोगों के माध्यम से उन सरकारों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्षत्रियों को फिल्मों के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नौकरियों में कटौती करके आपने हर तरीके से देख लिया ना. नहीं हुए ना क्षत्रिय खत्म. अरे क्षत्रिय खत्म आप लोग क्या करोगे? आप तो कल की सरकारें हो, जब चाहे तब पलटी मरवा सकते हैं. आप तो कल की सरकारें हो, जब चाहे तब पलटी मरवा सकते हैं. यहाँ तुर्की, जो विदेशी आक्रांता थे तुर्क, उन्होंने आकर के ट्राई मार के देख ली, क्षत्रियों को खत्म नहीं कर पाए. यहाँ अंग्रेजों ने खूब ट्राई मार ली, वो खत्म नहीं कर पाए. तो तुम्हारी क्या औकात है? अरे मां मोगल के क्षत्रिय हैं, ये मां करनी के क्षत्रिय हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम. आप लोगों ने देखा होगा कि पेन के अंदर एक स्प्रिंग डली हुई होती है और उस स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है उतनी वो सिकुड़ जाती है, और जब भी उसको छोड़ते हो तो वो ठप जैसी वापिस पड़ जाती है. वही क्षत्रिय है. कितना ही आप दबा लो, कितना ही कुचल लो, क्षत्रिय इस धरती से मिटने वाला नहीं. मेरे देश के नौजवान साथियों, क्या कबूतर पढ़ाते हो, क्या खरगोश पढ़ाते हो, क्या गधा पढ़ाते हो, अरे 6 क्षत्रिय क्यों पढ़ाते हो? फिर
देश की पहली क्लास के अंदर भी 6 क्षत्रिय पढ़ाते हो और एक तरफ क्षत्रियों को खत्म करने की ठानते हो, एक तरफ कहते हो बहन बेटियों के लिए, गाय के लिए, हिंदुत्व के लिए, मंदिर के लिए क्षत्रिय मर मिटता है। तो फिर क्षत्रियों को खत्म कर देगा तो कौन मर मिटेगा? कौन मर मिटेगा तुम्हारे लिए? अरे कौन लड़ेगा? कौन तलवार उठाएगा? मेरी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी मेरी बहनें अभी तलवार लेकर के तलवारबाजी कर रही थी। अगर वो यहां है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं तलवार लेकर के आ जाओ यहां सामने। यहां तलवार लेकर के इधर मुंह करके खड़े हो जाओ मेरी बहनों। अरे देश के नौजवान साथियों, हम लोग हाथ पर हाथ करके नहीं बैठे हैं। हम लोगों ने जो तैयारी कर रखी है करनी सेना ने पूरे भारत में, वो अलग है। अरे हमारी तो बहन बेटियां भी महाराणा प्रताप की तरह तलवार लेकर के चलती है। मेरे देश के नौजवान साथियों, यह फिल्मी भांड कोई गाली शब्द नहीं है। भांड वो होते हैं जो दिन में 3-4 रोल बदल लेते हैं, उनको भांड कहा जाता है। यह फिल्मी भांड हमें पूरे देश के अंदर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फिल्मों के जरिए फिल्म बना करके क्षत्रियों को बदनाम करने का काम करते हैं। जिस तरह अभी वो ब्राह्मण देवता है, मेरे पास फोन आया कि मैं ब्राह्मण हूं, ऊपर से राजस्थान का रहने वाला हूं और ऊपर से महाराणा प्रताप जी की मिट्टी से आता हूं, मैं पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर फिल्म बढ़िया बनाऊंगा। तब थोड़ा सा विरोध हुआ तो बोला पृथ्वीराज पिक्चर बनेगी। मैंने कहा ऐसे कैसे बनेगी पृथ्वीराज? राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान लगा, असली नाम वो था। तब सम्राट लगा करके उस पिक्चर को रिलीज कर दिया गया और इस पिक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऐसा था क्या? उसको जोकर सा बना करके रख दिया। इस पिक्चर के अंदर अक्षय कुमार ऐसे लगता है जैसे सर्कस के अंदर जोकर नहीं होते। सर्कस के अंदर अब तो बंद कर दिया सरकारों ने, सर्कस कहा रहे हैं, वो जोकर बन करके जोकर बना करके इस पिक्चर के अंदर प्रस्तुत कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान को, ये बात ध्यान से सुनना मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, पृथ्वीराज चौहान को इस पिक्चर के अंदर हिंदू बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को इस पिक्चर के अंदर हिंदू बना दिया गया। और आगे झूठ पड़ी ना, अगर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करोगे, हिंदुत्व को नीचा दिखाने का काम करोगे, तो झूठ पड़ी तो जबाड़े में जैसे शेर का हाथ डाल करके हमारे पूर्वजों ने शेरों को चीरा ना, ऐसे चीर देंगे। ऐसे चीर देंगे पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। अभी 9:45 हुए हैं, इसलिए 15 मिनट आप लोगों की ओर लूंगा मैं। ये घड़ी स्पेशल बनी हुई है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिल्मी भांडों को हमने समय समय पर बिग बॉस चल रहा था, उस समय लोग तो कहते हैं हम घर में घुस जाएंगे। सलमान खान के घर 18 लड़के अपने भाई मूंछों पर ताव दे करके उसके घर के अंदर घुस गए थे और आज वो बंद है। जमानत करवानी पड़ी थी उन बच्चों की, उन भाइयों की। बंसाली पीट के आया था और
जो ये पृथ्वीराज पिक्चर की जिसने स्टोरी लिखी है, जिसने प्रोड्यूस की है, उसको भी थोड़ा बहुत तो इनाम जरूर देंगे। इन लोगों ने अमरीश पुरी को ठाकुर बना करके पिक्चरों के अंदर गरीबों को मारते हुए, पीटते हुए, उनकी जमीनें छीनते हुए, किसी को पानी नहीं पीने दे रहा, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कोड़ों से मार रहे हैं। ये रोल अमरीश पुरी का ठाकुर बना करके पिक्चरों में दिखाते थे। और बेटे और कंवर साहब के रूप में शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर को जो डीकरा बोलते हो, वो डीकरा गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर को परोसते थे। और उनका रोल क्या होता था? एक ओपन जीप में बैठ गए, 5-4 डंडे बिठा लिए, 2-4 वेस्ट बॉल डंडे डाल लिए, 1-2 हथियार रख लिया और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के बहन बेटियों की इज्जत तार करते हुए दिखाया जाता है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम क्षत्रिय ऐसे हो जो बहन बेटियों की इज्जत तार करते हो? कैसे हो? है ना, फोटो डाल देंगे, फोटो ने दोनों अगर नहीं हो चिल्लाएंगे मेरे ऊपर। मैं बताता हूँ लाइव ले रहा हूँ। असली क्षत्रिय कौन? असली क्षत्रिय वो जो कोई बहन बेटी की तरफ उंगली करे तो उसका हाथ काटते। असली क्षत्रिय वो, असली क्षत्रिय वो अगर कोई बहन बेटी की तरफ हाथ निकाले तो उसकी आंख निकाल दे, वो असली क्षत्रिय। असली क्षत्रिय कौन? जो मंदिर की रक्षा करे, बहन बेटी की रक्षा करे, गाय की रक्षा करे और हजारों गर्दने कटवा ले और लाखों गाजर मूली की तरह काट दे, वो असली क्षत्रिय है। पर इन फिल्मी भांडों ने हमें बहुत बदनाम किया है। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये जो मैं मीडिया वाले भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपने एक शब्द रट रखा है, क्योंकि आजकल की जो रैली मीटिंग होती है उसमें सैकड़ों ही लोग होते हैं। तो आपने एक शब्द रट रखा है, सैकड़ों करनी सैनिकों ने भाग लिया। अरे हजारों तो हमारी बहनें बैठी हैं, हजारों तो हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ, और हजारों हमारे भाई बैठे हैं। जब जब हिंदुत्व पर आंच आई है, जब जब क्षत्रिय पर आंच आई है, तो ये जो बैठी है ना, ये छतरानियां, ये जो तलवारधारी मेरी बहनें दिख रही है ना आपको, जब जब हिंदुत्व पर आंच आई है, क्षत्रियों पर आंच आई है, तब तब इन्होंने हंसते हंसते मां पद्मावती का स्वरूप बन करके अग्नि कुंड को धारण कर लिया। पर अलाउद्दीन खिलची जैसे दरिंदे को मर्द शरीर के भी उंगली नहीं लगाने दी। ये जो छतरानियां यहां विराजमान है, मेरी माताएं बहनें, जब जब हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने युद्ध लड़ने के लिए युद्ध घोष हो गया और युद्ध की तैयारी कर ली, रवाना हो गए, तब राजा साहब हांडी रानी के प्यार में, जब राजा साहब हांडी रानी के मोह में थे, तब हांडी रानी को महसूस हो गया कि राजा साहब तेरे मोह में हैं और युद्ध हार सकते हैं, राजपुताने की मूंछें नीची हो सकती है। तब उसने प्यादे को बुला करके और अपनी गर्दन, शीश काट करके थाली में और राजा को भेज दिया सेनानी के रूप में कि राजा साहब, ये सेनानी मैं आपको दे रही हूं, इसको देख करके ये युद्ध आपको जीत के आने हैं। ये हमारी ऐसी माताएं बहनें वीर हैं। पर इतिहास के अंदर हर जगह इनको छुपाया जाता है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, अब क्षत्रिय हो, राजपूत बन करके बहुत जी लिए, अब क्षत्रिय बन करके जीना है और पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंजना चाहिए, क्षत्रिय एकता,
जिंदाबाद। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। पीछे से आवाज नहीं आ रही है पूरी, क्या बात? क्षत्रिय तो गायब हो रहा है क्या? क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय एकता। मेरी माता बहनों से भी कहना चाहता हूं कि दोनों हाथ खड़े करके और मीडिया को बता दो कि हम सब एक हैं। हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, एक डायलॉग है कि ये मत सोचो कि सत्ता गलत व्यक्तियों के हाथ में है, ये सोचो कि हमारी जो नेतृत्व की शक्ति है उसकी गलती के कारण सत्ता गलत हाथ में है। अरे एक बनो, नेक बनो। अगर बकरे बन करके जियोगे तो बलि चढ़ जाओगे, अगर शेर बन करके जियोगे तो हमेशा शेर की तरफ पूजे जाओगे। हमेशा शेर की तरह पूजा जाओगे। इसलिए बकरा नहीं, शेर बनो, शेर। मेरे देश के नौजवान साथियों, हमारे बाबू साहब लोकेंद्र सिंह जी कालवी, जिनको रात को पैरालाइज का अटैक आ गया था और आज दिन में ब्रेन हेमरेज भी हो गई, वो वेंटिलेटर पर हैं। तो आप अपनी अपनी तरफ से जो भी करनी सैनिक हैं उनको स्वस्थ होने के लिए सभी कामना जरूर करना और यार दोस्तों को भी बोलना कि वो जल्दी स्वस्थ हो करके फिर एक बार खड़े हो। मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोगों ने हमेशा एकजुटता दिखानी है। कोई संगठन, कोई पार्टी, ये पार्टी है ना। मेरा डायलॉग सुना होगा पहले, अभी एक डायलॉग तो भाई साहब ने बताया आपको कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए लोग सुखदेव सिंह गोगानेरी कहते हैं। और एक और बता देता हूं कि जो हमारे महापुरुष थे, जिनके अधूरे काम थे, चाहे वो महाराणा प्रताप सिंह जी हो, चाहे राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वीर दुर्गादास राठौर हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारी देवियां हो, जो ताकत उन लोगों ने दिखाई थी वो ताकत आप लोगों को दिखानी है। और उनके अधूरे सपने, उनके अधूरे काम आप लोगों को पूरे करने हैं। महाराणा प्रताप जी का सपना था कि मैं पूरे क्षत्रिय समाज को, पूरे हिंदुत्व को एक करके लड़ूं। उस सपने को पूरा करना है। उसमें अरे मेरे समाज के बनाओ भाई साहब, मेरे समाज के बनाओ भाई साहब, एक हो जाओ, नेक हो जाओ और अपनी ताकत संगठित होकर के दिखा दो। इस देश की बड़ी से बड़ी ताकत आपके कदमों में आकर के कहेगी, ठाकुर साहब पावे लागो। पर उसके लिए संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और उस मुहिम को राज शेखावत जी गुजरात में लेकर के चल रहे हैं और ये मुहिम देश के 24 प्रदेशों में चल रही है। अन्य अन्य प्रदेशों के अध्यक्ष वहां लेकर के चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ कच्छ भुज की टीम को, जितने भी लोग भाई बहन इनके यार दोस्त लगे हुए थे, और प्रदेश टीम को, राज शेखावत जी को, कि आज भुज के अंदर आपने इतिहास रच लिया क्षत्रियों का। ये इतिहास में नाम रहेगा कि क्षत्रियों ने हुंकार भरी। और इतने क्षत्रियों की गिनती तो वहां हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि
12 किलोमीटर लंबी रैली थी, पीछे तक कोई देख ही नहीं पा रहा था। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मीडिया वाले भाइयों, 50 से प्लस थी, उसको 70 लाख भी मान सकते हो, 60,000 भी मान सकते हो। तो 50,000 से आज शुरुआत भुज की हुई है। अगली बार जब यहाँ क्षत्रियताओं की बात होगी तो उस दिन 5 लाख राजपूत होंगे, और उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब हम सब हम सब हम सब एक होकर के हमारी ताकत दिखाएंगे। मैं एक बार पुनः पूरी गुजरात टीम को, राज शेखावत जी को, और यहाँ के जिला अध्यक्ष जी को और उनकी टीम को, प्रदेश टीम को, दलीप भाई को, और हमारी बहनें जो तलवार चलाती हैं, जो तलवार की ट्रेनिंग लेती हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो इनकी ट्रेनर हैं, जो इनको सिखाते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। इसी तरह इनको तैयार करते रहो और आगे बढ़ते रहो। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी, अरे पत्थर को भी कर दे पानी। हम सब हम सब हम सब। अब मैं बोलूंगा जय जय राजपूताना, आप 2 बार बोलोगे जय जय राजपूताना, जय जय राजपूताना, और फिर उसके बाद 5 मिनट हमारी बहनें तलवारबाजी करेगी, उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे। जय जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय मां मोगल। बोलो मोगल माता की, बोलो मोगल माता की, बोलो करनी माता की, बोलो करनी माता की, बोलो छतरानी एकता, छतरानी एकता, छतरानी एकता, क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय एकता। मेरा यही कहना है कि समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको त्यागें और नशा ना करें। नशा शरीर का नाश करता है, नशा घर का नाश करता है, नशा आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। जो नशे की जिनको लत लगी हुई है, हमारे बुजुर्ग हैं जो 60, 70, 80 के हैं, उनको जो सेवा करनी है उनकी, वो उनकी करते रहो, उनका मत छुटवाना। पर युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि तुम लोग नशे से दूर रहना। जब भी नशे की याद आए, चाहे बीड़ी हो, चाहे गांजा हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे चरस हो, चाहे चिट्टा हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे स्मैक हो, चाहे अफीम हो, चाहे डोडा हो, जब भी नशे की याद आए तो मेरे देश के नौजवान साथियों, जो तुम्हारी रगों में खून बह रहा ना, वो उन पूर्वजों का है, महाराणा प्रताप जी जैसे वीर योद्धों का। उस खून को देख लेना, उस खून से बड़ा नशा इस हिंदुस्तान में बना नहीं। राजपूती खून से बड़ा नशा इस हिंदुस्तान में बना नहीं। इसलिए यही कहूंगा, सब एक रहो, नेक रहो। और राज शेखावत जी को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसी तरह इस मुहिम को लेकर के चलते रहो। कोई भी सरकार आए, रुकना नहीं है। ये दिख रहा ना व्यक्ति जो 2.5 किलो सोना पहन के चलता है, जो आदमी 2.5 किलो सोना पहन के चलता है, जिस आदमी के नीचे 5,000 आदमी काम करते हो, उसको समाज सेवा की कोई जरूरत नहीं है। पर इनके अंदर दिल में एक टीस जगी, और उस टीस को मैंने पहचाना, और मैंने इनको गुजरात की जुम्मेवारी दी, और इन्होंने खरा बन करके दिखाया। फिर हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया, और आज वो खरापन आप लोगों का दिख रहा है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, खरा सोना कहीं भी दिख जाता है। इस व्यक्ति ने जो ठानी है, ये राज शेखावत जी ने जो समाज को एक झंडे केसरिया के नीचे लाने की जो ठानी है, इसमें आप लोगों की भागीदारी सबकी सुनिश्चित करें। और जरूरी है कि आप सब लोग मिलकर के इनकी भागीदारी निभाएंगे
तभी हम नारा दे पाएंगे, हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। जय मां भवानी, जय राजपूताना। लो मेरी बहनों, दिखाओ थोड़ा सा, दो दो हाथ दिखा दो, पूरा भारत देख रहा है आपको। और भारत नहीं,